In our last lecture, we studied how secondary growth occurs in stem or how secondary wood is formed or in what manner secondary xylem is acting as a main wood. And whenever it is formed, it is exerting pressure towards the outside because central part of the stem is increasing in its diameter continuously. जैसे ही अंदर का diameter continuously increase होता है तो अंदर से stem क्या करती है, it causes pressure towards the outer side, and just to give the protection towards the outer side, there develops some another meristematic tissue, and that meristematic tissue is called the extracellular cambium, or we can call it extracellular cambium, or we can call it phallogen or cork cambium, and it is a second part of the lateral meristem. Lateral meristem में जो first part that we had studied about, that was vascular cambium, and due to the activity of fascicular cambium as well as intrafascicular cambium, जिसने diameter अंदर का increase किया था, और I mean to say when the diameter of stem was increased, that was due to the activity of fascicular as well as of intrafascicular cambium, जो कि हम पढ़ चुके हैं. अब हम देखते हैं कि बाहर की तरफ किस तरह से meristematic tissue develop होता है, and what is the name of that tissue and in what manner it is forming the bark or periderm. So first of all, we know that there are epidermal cells, they are present. Epidermal cells present होती है ना, outer protective layer of a stem, that is acting as a epidermal cell. क्या काम करती है वो, एक तरह का एपिडर्मल सेल का काम करती है, एंड इट इज काम नहीं करती, मतलब आई मीन टू से इट इज एक्टिंग एज ए प्रोटेक्टिव लेयर. क्लियर? एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रेशर व्हेन इट इज एक्सर्टेड टुवर्ड्स द from the inner side towards the outer side, then what happens, some of the cells that are just below the epidermal cells के जो नीचे की कुछ cells जो होती हैं हाइपोडर्मिस से, हाइपोडर्मिस कह लें, और आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, और फ्रॉम द हाइपोडर्मल सेल्स देयर आर 2 to 3 layers of cells. They become rectangle, elongated, and they are meristematic in nature. 2 to 3 layers thick होती है. Initially they look like a single layer, but later on they are 2 to 3 layers thick. बाद में वो 2 to 3 layers thick हो जाती हैं, and they act as cork cambium और phallogen. इसको क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन. हाउ इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्टेक्स. जैसे अंदर का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना, उस कॉर्टेक्स के ऊपर ही हाइपोडर्मिस है, और एपिडर्मिस तो सबसे आउटर साइड पे होती है. तो हाइपोडर्मिस जो कॉर्टेक्स को टच करती है, वो वाली सेल्स कुछ मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, एंड दे बिकम लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, नैरो एंड इलोंगेटेड, एंड दे अपीयर रेक्टेंगल, and they are meristematic in nature. And all this development, this formation of meristematic tissue is occurring towards the periphery, and that is why it is also called extrastellar cambium. Extrastellar cambium. And how it is forming? By the process of, mana to hypodermis se, and again by the process of रिगेनिंग एक्टिविटीज ऑफ द हाइपोडर्मिस सेल्स, यानी कि हाइपोडर्मिस फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गई. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डी डिफरेंशिएशन. व्हाट वी आर कॉलिंग इट, इट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन से डेवलप हुई. क्लियर? And this time what will they do, what these cells will do, they will cut off the cells towards the inner side. अंदर की तरफ क्या बनाती हैं, कुछ cells को काटती हैं, and these cells whenever they cut towards the inner side, and these inner cells are thin walled and parenchymatous. क्या होती है, thin walled and parenchymatous, loosely arranged, and they are forming the secondary cortex or phalloderm towards the inner side. Second name of this secondary cortex or phalloderm is phalloderm. There are 2 names of each layer. So this layer becomes meristematic. It is dividing and giving rise to the cells that are formed towards the inner side, inner cortical part की तरफ जब ये cells बनाती है ना, and इनको हम, इनकी nature क्या है, loose thin walled parenchymus cells.
These are parenchymatous cells. They are formed towards the inner side, and on outer sides are formed. There are thick suberized cells. Suberized means initially there are scunchymatous cells are formed towards the outer side. Dead cells हो जाती हैं because of the deposition of suberin material. Suberin material develop हो जाता है, and these cells are called the, what we call them, these are called the cork. इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉर्क और फेलम. Second name is phellum. Clear? The outermost parts develops more of cork on the outer side. ये जितने भी कॉर्क और बार्क वाला पार्ट है ना, दैट इज कमर्शियली यूजफुल, जो बॉटल कॉर्क होती हैं, ऑल दे आर फॉर्म बाय दिस कॉर्क. और मोस्ट कॉमनली क्वर्कस सुबर इज अ नेम ऑफ ए ओट प्लांट, जिसकी कॉर्क काफी फेमस है. क्वर्कस सुबर, it is secreting the cork, or which is used commercially for the formation of bottle cork. Bottle cork बनाती है, ठीक है. And they are all forming several layer of thicks. जैसे कि मैंने अपने initially diagram में पेरिडम बनाया था ना, तो all they are collectively forming the a protective tissue or bark called the peridum. Collectively scientific name of this bark is पेरिडम. पेरिडम भी बोलते हैं, और वी कैन कॉल इट बार्क ऑल्सो. तो बार्क में व्हाट वी आर इंक्लूडिंग, पेरिडर्म इज फॉर्म्ड बाय द पेरिडम और बार्क. कैसे बना? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री सेल्स. आउटर सरफेस पे तो कॉर्क और फेलम, कॉर्क वर्सेस फेलम, दोनों का एक ही नाम है, एक ही टिश्यू है. प्लस कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन. कॉर्क कैम्बियम और फेलोजन, single name is there, cork cambium और फेलोजन. एंड नेक्स्ट इज प्लस, अगर इनर वाली साइड पे what kind of cells are formed? Secondary cortex और phellum. Phellum और secondary cortex, these are parenchymatous cells, living cells, thin walled cells, and these are meristematic cells, which is cutting off the cork towards the outer side, and these corks are suberized. सुबेराइज हो जाती है, थिक वॉल्ड हो जाती है और डेड हो जाती हैं, स्कनकाइमस सेल्स. ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? पेरिडर्म और बार्क. And we can say bark is a technical term which is including all of these, and some of the living tissue, that is secondary phloem is also included. bark का portion इन तीनों के अलावा अंदर का जो secondary phloem बनता है ना, वो भी include होता है. तो according to modern theory, bark is including some part of the living tissue, that is secondary phloem, and all of this dead part, it is being formed. ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूसली लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनती रहती हैं. ईच ईयर एक सिंगल कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म, एंड आफ्टर 1 year इट इज डाइड एंड इट इज मिक्सड अलोंग विद दिस बार्क वाला पार्ट. बार्क से मिक्स हो जाता है, एंड द नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक लेयर इज अगेन फॉर्म. ठीक है, इस तरह से मेरिस्टेमेटिक लेयर कॉन्टिन्यूसली डेवलप्ड ईयर आफ्टर ए ईयर. ठीक है, और जो इनर वाला डेड पार्ट, मेरिस्टेमेटिक लेयर जो एकदम से लेटेस्ट डेवलप होती है ना, उसके बाहर का पार्ट सारा का सारा डेड हो जाता है, एंड दैट डेड पार्ट इज कॉल्ड द राइटिडोम. देयर इज ए न्यू टर्म, राइटिडोम किसको बोलते हैं? दैट इज ए पार्ट दैट इज फॉर्म टुवर्ड्स द आउटर साइड. जैसे कि मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम मैंने बोला ना, एक बार तो 1 year में ये लॉस्ट होगी इसकी कैपेसिटी डिवीजन की, इट विल बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सम अगेन सुबेरिन मटेरियल. तो ये भी कॉर्क बार्क में एंटर कर जाएगा. फिर इसके साथ ही जो नेक्स्ट लेयर होगी ना हाइपोडर्मल सेल से, एडजेसेंट सेल, हाइपोडर्मल नहीं उसके ही एडजेसेंट सेल से, पेरिडम वाले पार्ट से, सॉरी सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाले पार्ट से सेल्स फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, वो सेकेंड लेयर बनाएंगी कॉर्क कैम्बियम का. तो बाहर की तरफ सारा डेड टिश्यू डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो वो सारा डिपॉजिट डेड टिश्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू राइटिडोम. ठीक है, तो राइटिडोम क्या होता है? ऑल dead part formed by the latest, all the dead part formed by the latest region of
latest cork region, or we can say later cambium, which is developed from outer secondary cortex. तो इस तरह से ये bark deposit होता चला जाता है year after and year. Clear? And whenever a certain pressure is built on inner side, there are some cells where the cork is not formed. Cork cambium क्या करता है? कुछ ऐसे cells which are called the complementary cells. वहाँ पे बार की को उसकी सुबरीन की डिपोजिशन नहीं होती. And these are loosely arranged, what we call it loosely arranged parenchyma cells. कौन सी सेल्स होती हैं? पेरेनकाइमा सेल्स. दे आर फॉर्म्ड. तो दीज आर कॉल्ड दी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कैसे डेवलप हुई? उन एरियाज में जहाँ पे कॉर्क बन रहा है ना, जहाँ पे ये सुबेराइज सेल्स बन रही हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं सुबेराइज सेल्स के जहाँ पर ये सुबरीन डिपॉजिट नहीं होता. सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड एंड दे आर पेरेनकाइमा सेल्स. क्या होती हैं? पेरेनकाइमा सेल्स. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. उनको क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. एंड ऑल दिस आर एक्सर्टिंग प्रेशर टूवर्ड्स दी आउटर इपिडर्मल सेल्स. जैसे इपिडर्मल सेल्स मैंने तो स्टार्टिंग में रप्चर ही हुई दिखा दी ना. एंड हाउ इट हैज रप्चर्ड, जैसे प्रेशर अंदर से बिल्ट हुआ, इट हैज मूव टूवर्ड्स द आउटसाइड, बाहर की तरफ आया, और दीज इपिडर्मल सेल्स दे आर रप्चर्ड, फट जाती हैं. और what happens in ruptured cells में कुछ slit like और lens shaped openings नजर आती हैं. These lens shaped openings on bark are called the lenticles. Lens shaped openings on bark are called the lenticles, and these are responsible for the gaseous exchange as well as for the प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. ये लेंटिकल्स जो होते हैं ना, टी शेप स्लिट लाइक ओपनिंग्स, आप जब भी किसी वुडी एरिया में जाओगे ना तो आपको ऐसे ओपनिंग्स नजर ही आएंगी. जैसे कि हम एक स्टेम लेना तो उसमें इस तरह से कुछ हमें स्ट्रक्चर ऐसे बार्क के ऊपर ओपनिंग्स ही नजर आती हैं, एंड टी शेप्ड होती हैं, या हम उनको लेंस शेप कह सकते हैं. तो दीज आर कॉल्ड नथिंग बट दीज आर व्हाट वी कॉल देम, दीज आर लेंटिकल्स. वुडी एरियाज में मिलती हैं, वुडी स्टेम पर मिलती हैं, और दे मे बी फाउंड ऑन रूट्स ऑल्सो, बट दे आर एब्सेंट ऑन लीव्स. लीव्स में एब्सेंट होती हैं. और व्हाट इज देयर फंक्शन? दे आर मेंट फॉर दी गैशियस एक्सचेंज. गैशियस एक्सचेंज करती हैं. ठीक है. वैसे तो ग्रीन पार्ट में स्टोमेटा होते हैं ना, द सेम वर्क of the stomata is taken by these lenticles. Gaseous exchange plus transpiration is also there with this lenticles. और ये कैसे डेवलप हुई? अंदर से प्रेशर डेवलप हुआ, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं दे विल बी पुटिंग प्रेशर टुवर्ड्स द आउटसाइड. और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कैसे बनी? बाय दी कॉर्क कैम्बियम, जो बाहर की तरफ कॉर्क को काट रहा है ना, डिवाइड कर रहा है, और वही कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो कॉर्क नहीं बन रहा, उसकी बजाय वहाँ पर पेरेनकाइमा सेल्स बन रही हैं. और वही पेरेनकाइमा सेल व्हेन दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर एंड दे आर पुटिंग प्रेशर दो ऑन दिस इपिडर्मल सेल्स. इन इपिडर्मल सेल्स को प्रेशर पुट करेगा, और जिससे कि व्हाट वी कैन से लेंटिकल्स आर फॉर्म. लेंटिकल्स आर फॉर्म फॉर द गैशियस एक्सचेंज. किसके लिए? गैशियस एक्सचेंज के लिए लेंटिकल्स बनेंगे. तो दिस इज रिगार्डिंग द पेरिडम. पेरिडम, हाउ बार्क इज फॉर्म. अब हम देखते हैं कि किस तरह से बार्क बनती है. देयर आर टू वेज बाय मीन्स ऑफ. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द बार्क इज फॉर्म इन ए कॉन्टिन्यूअस रिंग लाइक मैनर. पूरी की पूरी थिन स्लाइसिस कॉन्टिन्यूअस रिंग लाइक मैनर में जब बार्क बनती है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिंग बार्क. इवन सरफेस होती है, इवन थिकनिंग्स होती हैं इस रिंग बार्क की, इवन थिकनिंग्स. और सच काइंड ऑफ बार्क इज यूज्ड एज भोजपत्रा. भोजपत्रा की जो बार्क होती है ना, इट इज यूज्ड एज ए पेपर इन द एंशिएंट टाइम. ठीक है. तो राइटिंग पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता था बार्क को. ठीक है. और सेकंड बार्क होती है दैट वी कैन कॉल ऑफ स्केली बार्क, जिसमें ना स्लिट लाइक फॉर्म में ऐसे उठी हुई होती हैं बार्क. आप देखे होंगे कि ऐसे स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. जैसे बार्क हुई ना, तो अब उसको ओपनली ऐसे हम दिखा नहीं सकते, ऐसे बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं कुछ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स में स्टेम के ऊपर, वुडी एरिया के ऊपर. एंड दीज आर कॉल्ड दी स्केली बार्क, जिसको हम स्केली बार्क बोलते हैं. तो स्केली बार्क इन सीन इन केस ऑफ गुआवा, मैंगो एंड नीम एटसेट्रा, इन सब में ये
स्केली बात देखने को मिलती है, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग आवर सेकेंडरी ग्रोथ दैट ऑकर्स इन एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम, ठीक है। हाउ द फेलोजन इज फॉर्म, how phloem is formed, how phylodon is formed, or in what manner they are forming the periderm, ठीक है। And lenticles I told you, और bark and whatever I have told you regarding scaly bark के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो दिस इज रिगार्डिंग, अगर हम रिंग बाग को पूरा का पूरा, जैसे एक रिंग बाग है, एक देयर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा रिमूव करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, देन व्हाट हैपन्स, द रूट विल नॉट गेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर न्यूट्रिएंट्स, ऊपर से सप्लाई रुक जाएगी एंड होल first of all the root will die first and later on other parts of the plants they will die, ठीक है। ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट हम प्लांट फिजियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग अवर फॉर्मेशन ऑफ bark, हाउ इट occurs. Now we come to the next part of this, or last part is how secondary growth occurs in case of dicot stem.